कैसे हो दोस्तों। स्वागत है फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आम जनता फिटनेस आज फिर से चलेगा सड़कों पर इंटरव्यू करने। देखते हैं जो मिल जाए उससे इंटरव्यू ले लेंगे, उससे पूछेंगे पहले कि आप इंटरव्यू के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। अगर वो हाँ बोलेंगे तो इंटरव्यू लेंगे, ना बोलेंगे तो नहीं लेंगे, फिर किसी और के पीछे चल देंगे। तो आइए चलते हैं इंटरव्यू लेने रोड पर। बाय बाय। चलो जी चलो, फिर आम जनता फिटनेस सड़क पे निकल चुका है किसी का इंटरव्यू करने। आज देखते हैं किसका इंटरव्यू करते हैं। बड़ी सारी मार्केट है यहाँ, मतलब बड़ी सारी शॉप्स हैं इस मार्केट में, तो देखते हैं कौन मिलता है हमें। ये तो है कोली वेजिटेबल शॉप। ये कोई फार्मेसी है, ये कोई ब्यूटिशियन है, एक यहाँ पे अरोड़ा फार्मेसी है। क्या हाल है भैया? कैसे हो? फाइन भैया। भैया मेरा नाम है सुरेश और मेरा ना यूट्यूब का चैनल है आम जनता फिटनेस। तो मैं लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, उनके ओपिनियन जानता हूँ फिटनेस से रिलेटेड। तो अगर मैं आपका इंटरव्यू लूँ फिटनेस से रिलेटेड तो आप कंफर्टेबल होंगे? ठीक है भैया, तो स्टार्ट करते हैं। माइक वगैरह लगाते हैं, फिर आपका इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भैया आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। My name is Sumit Arora. I'm a pharmacist and I'm also a nutrition and fitness coach at Fitter. अच्छा, आप फिटर पे कोच भी हैं? Yes. ठीक है। और भैया आप, सबसे पहला जो मेरा सवाल होता है सबसे यही कि आप जिम जाते हैं? हाँ, मैं जिम जाता हूँ। तो आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप जिम में? 45 minutes to 1 hour, 4 to 5 times a week. ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आप जिम जाते हैं और आप कोच भी हैं, तो आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को? I give online training, yes. अच्छा, ऑनलाइन देते हैं? Yes. तो उसमें आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग पे? It's basically trying to devise a nutrition and fitness plan according to their needs. So it's online consultation. It's basically consultation over the phone calls. It could be a video call or it could be a normal call depending upon the timing slots. अच्छा, जैसे मैसेज वगैरह भी हो गया आपके? Yes. So मैसेज पे भी आप बता देते हैं क्या करना है? I do it through Fitter application itself. अच्छा। And it's on WhatsApp calls, Fitter application. I do basically do inquiries and then consultation calls with that. ठीक है, ठीक है। और भैया मेरा अगला सवाल ये है कि आप सप्लीमेंट वगैरह लेते हैं जिम जाते हैं तो, प्रोटीन वगैरह कुछ? हाँ, I take whey supplement, whey protein on and off. When I feel that I'm able to complete my requirements with my diet, then good. I don't take any supplement at that point of time. But sometimes when I'm traveling, and if I feel that it's difficult to actually consume protein, then I do take the supplement along with me. ओके भैया, ये आपने बहुत ही सही जवाब दिया, क्योंकि कई लोगों को ये मिथ है कि प्रोटीन लेने से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बॉडी में। तो उस पे क्या कहना है आपका? See, protein in itself is a supplement, but वो supplement food में available है. ओके। See, if everything that we are eating, we actually understand the quality and the macronutrients for it. Like basically क्या होता है? If in any food we consider, it is going to be either carbs, either going to be protein, or either going to be fat. So हमें क्या करना है अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से, we need to set a level of protein and carb and fat accordingly. Sometimes we can do it through food and sometimes we do need to add if we cannot consume a lot of food, because obviously protein in itself is about high in nature with thermic effect, which is a very high for the protein. So considering that, it makes you feel fuller also. So we do need to make sure that either a supplement or a good source, like if I talk about vegetarian stuff, it's paneer, or it's going to be soya granules, or you can say in pulses or dals and chole, you get some quantity of protein. But then it also has in vegetarian some amount of carbs also. So it's actually depending upon the body, actually depending upon your personal goals, whether you want to fulfill the requirement with vegetarian or whether you want to fulfill it with any non-veg supplements like chicken or egg or fish, for example. थैंक यू सो मच भैया, आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। और सबसे बड़ी बात, आपने एक तो मिथ जो था ना प्रोटीन से रिलेटेड, वो आपने आज बस्ट कर दिया। तो ये ऑडियंस को समझना चाहिए। हमारे इंडिया में एक्चुअली इसे मिथ माना जाता है अगर प्रोटीन लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, उसके लिए आपने अच्छे से एक्सप्लेन करा। अब मेरा जो अगला सवाल है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? आप मैरिड हैं? Yes, I'm married. It's my wife, my 5-year-old daughter and my father and my sister. ओके। तो आप उनकी फ़िटनेस का कैसे ध्यान रखते हैं और उनके खाने पीने का? In terms of food, I do try and push protein intake ओके। on a daily basis for my daughter, for my wife, for my father and my sister also. And
in terms of physical activity, my father itself, he goes to walk, and he does some kind of yoga activities in the house if he's not able to go outside. For my daughter, I have actually enrolled her in gymnastic classes, and also I do have a pull-up bar which I use most of the time, but sometimes when she's also not able to go to the classes, I try to make sure that she's doing some dead hang or some hanging activities just to improve the physical activity. And in terms of my wife, she is physically active in terms of, because she's a teacher, so she has a standing job. She does a lot of walking, so her step count is on a good side. And apart from that, I also try to make sure that she's also having her portion of protein. So gym for her is not possible at the moment, but yeah, we are trying to incorporate time so that she can also go to the gym, which eventually she would once she gets the time. नहीं, आपकी बात ठीक है। जैसा आपने बताया आपकी वाइफ टीचर है, तो वही स्कूल में भी स्टैंडिंग जॉब है, घर पे आना भी काम करना है, तो उनका फिजिकल टास्क तो देखो हो ही जाता होगा। Exactly. क्योंकि सुबह उठना भी होता है, Yes. फिर रात को लेट सोना, बच्चे को भी देखना, आपको भी देखना, सबके लिए खाना वाना बनाना। ठीक है भैया। भैया मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि आजकल जंक फूड का ट्रेंड बहुत चल रहा है, मतलब बच्चे तो रुक ही नहीं रहे हैं, खासकर 18 से लेके 25-30 साल वाले तो बिल्कुल नहीं रुक रहे हैं। मोमोज, चाउमीन, बर्गर, कुछ भी, मतलब कुछ भी खा लेते हैं वो, और साथ में मेयोनीज, केचप। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? See, being a coach, I understand that you can fit anything in your food diet, but then that has to be quantified by cooking itself. If you are actually buying food from outside, you don't know what exactly you are going to eat, whether it's going to have too much of oil, too much of carbs, or whatever the spices they are using. You cannot understand that. So my idea is, if you want to fit something in your diet, you can, but that also has to be cooked by yourself or someone in your family by counting the macros. If you're keeping on taking junk food each and every day, someday, maybe 6 months, maybe 1 year down the line, you would understand that your internal health is not what it used to be. You might see your blood profile spiking up in the HbA1c level, or even if you say your cholesterol levels could also shoot up, because it's gonna be unhealthy oils mostly which are being used in street vendors. And even if they're using good oils, but still you would not understand the amount of quantity they are using. So if your goal is to basically try to reduce your weight, you might not be very effective in trying to eat something from outside. So junk, from my perspective, is not something I recommend to any of my mentees. कि आजकल हम बहुत सुन रहे हैं कि जो जिम जाते हैं, मतलब बहुत ही यंग एज, जैसे 25, 30, 35, 22, 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि क्या होगा उनका रीज़न? या सप्लीमेंट ज़्यादा ले रहे हैं, या स्ट्रेस ज़्यादा है उनकी लाइफ में? मतलब आप क्या सोचते हैं और आपके व्यूज़ क्या हैं इस बारे में? देखो, इस बारे में दिस इज़ बेसिकली अ वेरी बिग टॉपिक। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें एक्चुअली कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि उनकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर उनकी जेनेटिक हिस्ट्री में ही किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं, तो फ्यूचर जनरेशन्स जो है उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें बेसिकली जो होता है, प्लाक का बिल्डअप होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमने कभी चेकअप कराया ही नहीं। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है, एनुअल चेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट। अगर 35 ईयर्स के आसपास आप हैं एंड आपको लगता है कि आपकी स्लीप भी प्रॉपर नहीं है, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप ECG वगैरह 6 महीने या 1 साल में एक बार करा रहे हैं, ताकि हमें एक रूट कॉज पता चले। प्लस आजकल सप्लीमेंट्स का ज़माना है, बट वो सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। बीइंग अ फार्मासिस्ट, मैं किसी को जब तक किसी की रिपोर्ट नहीं देखता, मैं रेकमेंड नहीं करता कि आपको बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की सप्लीमेंट की, वो आपको दे या ना दे। एंड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉक्टर का ही रिकमेंडेशन हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा कैफ़ीन की इंटेक आजकल लोग बहुत ले रहे हैं टू स्टे एक्टिव। वो कैफ़ीन की इंटेक का भी एक लिमिट है, एक बॉडी की टॉलरेंस लेवल भी है। अगर जनरल हेल्दी इंडिविजुअल की बात करूँ मैं, तो अप टू 400 हम ले सकते हैं, 400 mcg। बट वो 400 आपकी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी हमें देखना है। तो अप टू 200 इज़ फाइन। बट किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, या किसी को शुगर है, किसी को हाइपरटेंशन है, तो उस सिनेरियो में हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि हाँ, फैमिली हिस्ट्री देखें, जेनेटिक हिस्ट्री देखें, उनका वर्कआउट लेवल क्या है, कहीं वो एकदम से हैवी लिफ्टिंग तो नहीं कर रहे, ईगो लिफ्टिंग तो नहीं कर रहे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने अगर बहुत हैवी लिफ्टिंग करी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक वल्सावा मैन्यूवर कहते हैं, जिसमें हम अपना ब्रीथ करते हैं बहुत ही शैलो, एंड देन वी ट्राई टू एक्सेल। तो उसमें क्या होता है, एक सडन स्पाइक ऑफ BP भी हो सकता है। तो अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है किसी को, या अंडरलाइंग हाइपरटेंशन है, अनइग्नोर्ड है या इग्नोर किया काफ़ी टाइम से, तो उसमें हमें देखना पड़ता है। तभी आजकल के
ज़माने में हम देख रहे हैं कि ये लोगों को जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं ट्रेडमिल पे, क्योंकि उनके एलिवेटेड हार्ट लेवल रहती है। कैफीन के लेवल की वजह से भी हो सकता है, प्री वर्कआउट की वजह से भी हो सकता है, फैट बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। तो एक टेस्ट बीइंग इनटू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ एनुअल हेल्थ चेकअप तो करा लें, जिसमें ECG वगैरह भी कराएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी चेक कराएं, ताकि थोड़ा सा हमें इंटरनल हेल्थ का पता चले। हाँ, क्योंकि मैंने देखा इंडिया में या आप देखेंगे इस चीज़ का तो ट्रेंड नहीं है चेकअप वगैरह का। आजकल थोड़े बहुत लोग अवेयर हुए तो हैं, बट मोस्ट ऑफ द हमारी जो जनता है वो चेकअप नहीं कराती। चलो, आपने अच्छे से समझाया, देखो, बहुत बढ़िया बात है। इंडियन हेल्थ केयर में पीपल दे कम अक्रॉस डॉक्टर्स व्हेन दे आर एक्चुअली सीइंग सम सिम्टम्स, बट सिम्टम शो करने में भी टाइम लगता है ना। वो सिम्टम आपको 6 महीने साल बाद शो होगा, बट वो जो आपका लेवल बिल्डअप हो रहा है किसी, चाहे मैं कहूँ BP का, चाहे मैं कहूँ कोलेस्ट्रॉल का, तो वो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एंड सम टाइम इट्स वेरी लेट जब हमें पता चलता है। तो टेस्ट से कम एक इंडिकेशन आ जाता है, सो दैट वी कैन एक्चुअली कंसल्ट द राइट डॉक्टर और द राइट पाथ हमें मिल जाता है कि हमें करना क्या है। करेक्ट। भैया, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है, मतलब सवाल क्या है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आजकल के यूथ के लिए क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दोगे कि वो अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखें और जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। देखो, फिटनेस या जिम जाने का मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट यू डू इन द 23 आवर्स व्हेन यू आर नॉट इन द जिम। 1 घंटा कोई वर्कआउट करने के बाद बाकी 23 घंटे में वो क्या कर रहा है, क्या वो ढंग से सो रहा है, सो पा रहा है, क्या वो ढंग से खा रहा है, क्या वो से पानी पी रहा है, उनका स्ट्रेस लेवल कितना है। आजकल फाइनेंसिस को देख के भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं, तो टेंशन में रहते हैं, जॉब्स को लेके, बिजनेस को लेके। उस रीज़न की वजह से उनका कॉर्टिसोल लेवल या स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वो चीज़ को निगलेक्ट ना किया जाए, स्लीप पे हमेशा ध्यान दिया जाए। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा आप बाकी 23 घंटे में ध्यान दीजिए, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का, ये सब चीज़ों का आपको रूटीन लाना पड़ेगा। जैसे आप अपने किसी वर्क को अपना ध्यान देते हैं कि यू नीड टू अर्न समथिंग फॉर योर लिविंग, उसी तरीके से आप अपनी बॉडी में 1 आवर फिक्स कर लीजिए कि आपको अपनी हेल्थ के लिए एक ही कमिटमेंट करना है, एक ही इन्वेस्टमेंट 1 घंटे की रोज़ की। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहिए और बाकी 23 घंटे अपने आप को ये सोच के रहिए कि आपने अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, एंड स्टिल अपने गोल्स के हिसाब से चलना है। एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएं ताकि हमें पता चले किसी भी चीज़ का बिफोर इट्स टू लेट कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ नहीं खड़े हैं, हमारी बॉडी क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। आपने सारे सवालों को बहुत ही अच्छे से आंसर करा और मैं दोबारा आपको थैंक यू सो मच बोलूँगा, क्योंकि आपने अच्छे से समझाया। आई एम श्योर कि आपने जो बताया ये चीज़ें शायद लोग इसको फॉलो करें और अपने चेकअप वगैरह कराएं और अपने मतलब लाइफ साइकिल का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। आवर मैसेज reaches many people and then they influence their life in a better way. बिल्कुल पहुँचेगा। All the best to you too. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया, वेलकम वेलकम। ऑलराइट दोस्तों, आपने देखा सुमित भैया ने कितना अच्छे से एक्सप्लेन करा हर चीज़ को, और मैं यही कहूँगा सबसे कि उन्होंने जो कहा है उसे प्लीज़ फॉलो करें। हेल्थ चेकअप अपना ज़रूर कराएं, 6 महीने में 1 बार या साल में 2 बार, जैसा आपको सूट करे। अपना स्लीप पैटर्न सही रखें और खाने का ध्यान रखें। और सबसे बढ़िया बात मुझे उनकी ये लगी कि उन्होंने कहा कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटा अगर आप जिम जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके 23 घंटे कैसे निकल रहे हैं उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।